सन्मान्य लोकसभा सदस्यराದ सुरेश अंगडी ಅವರು मला वाटतं की त्यांच्या या संपूर्ण भारताच्या दौऱ्यामध्ये सगळ्यात जास्त घोषणा कुठे तर दिल्या असतील तर ते फक्त बेळगावमध्ये असं नोंद झालं पाहिजे। त्यासाठी तुम्हाला आवाहन करतो की मोदी साहेबांचं जोरदार स्वागत करावं। टाळ्यांच्या गडगडाट त्याचबरोबर घोषणांच्या गडगडाटाने ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತವ ಆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಜೋರಾಗಿ मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नावेल्लरू मोदी जी ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। आगे बढ़ो मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। जोरात टाळ्यांच्या गडगडाट त्यांचं स्वागत हो। ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವಂತ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅವರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅವರ ಕೂಡ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಮಾಮನಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಕೌಟಗಿ ಮಠ ಅವರು, ಮಹಾನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಜ್ವಲ ಬಡವನಾಥಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। धरती चमकती है सूरज आने के बाद, आसमान चमकता है तारे आने के बाद, बेलगाम चमक रहा है मोदी जी के आने के बाद। मैं मोदी जी को आमंत्रण करता हूं इस सभा को वो संबोधित करें। नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರೇ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿ 3ನೇ ಸಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಜರಾತದ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್।
भारत माता के मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार श्री सुरेश जी, श्री उमेश जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जारकीहोली जी, श्री प्रभाकर कोरे जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, कन्नड़ नाडिನ ಜನತೆಗೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ शुभाशयಗಳು। और बेड़गांव में हूं तो गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मैं बेड़गांव कई बार आया, जनसभा को संबोधित करने का अवसर भी मिला है। जनसभा को संबोधित करने का अवसर भी मिला है, लेकिन ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा। पार्टी की रैलियां जब होती है तब तो ठीक है, साल में एक आध बार, 2 साल में एक आध बार, लेकिन एक पार्लियामेंट सीट की इतनी बड़ी चुनाव सभा भाइयों बहनों, आजकल जो पॉलिटिकल पंडित एनालिसिस करते हैं कि उसका 2.4 हो गया, उसका 3.2 हो गया, उसका 7.6 हो गया, नहीं आजकल चलता है ऐसा। ये 0.2, 0.3 के चक्कर से बाहर आओ, जरा नजारा देख लो, पता चल जाए। कोई सर्वे नहीं करना पड़ेगा, कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। हवा का रुख क्या है वो साफ साफ नजर आता है। भाइयों बहनों, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये आंधी सुनामी बन जाएगी। और भाइयों बहनों, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, ये सुनामी में कोई बचने वाला नहीं है। इस बार जनता उन्हें चुन चुन के साफ कर देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरे बेड़गांव के भाइयों बहनों, मैं आज भाषण करने के बजाय आपसे बातचीत करने के मूड में हूं। चुनने के लिए है कि नहीं है? पार्लियामेंट का मेंबर चुनने के लिए है कि नहीं है? तो चर्चा किसकी होनी चाहिए? मुझे बताइए, चर्चा किसकी होनी चाहिए? दिल्ली सरकार की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली सरकार के कामों का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने कामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं क्या? मुझे बताइए, दे रहे हैं क्या? एक भी सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या? एक कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वे जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए, ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो तो यही है, ये तो हमारे परिवार के लिए लिखा हुआ है, हमें मिलने ही वाला है, हम कोई जवाब देने के लिए बंधे हुए नहीं है। और ऊपर से चुनाव लोकसभा का है, चुनना प्रधानमंत्री को है, चुनना पार्लियामेंट के मेंबर को है। और आजकल बातें क्या करते हैं? गुजरात का गुब्बारा फूट जाएगा, गुजरात का गुब्बारा फूट जाएगा। मैं समझता नहीं हूं भाई, आप एमए की एग्जाम में 8वीं कक्षा का पेपर लिखने बैठ गए हो क्या? भाई एमए की एग्जाम देनी है तो जरा एमए की एग्जाम में बैठो ना। लेकिन भाइयों बहनों, वे जवाब देने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षा का भी पर्व होता है। राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, और विशेष करके जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को जवाब दें। 5 साल में उन्होंने वादे क्या किए थे और काम क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। अभी शहजादे जी ने कहा कि हमारे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप पक्का तैयार है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आपको मैप बनाने में 60 साल लगे क्या? ना, मैप तैयार करने में 60 साल लगे? अगर मैप बनाने में 60 साल लगे तो जमीन पर उतारने में तो 600 साल लगेंगे भाइयों। क्या आप 600 साल के लिए इंतजार करने को तैयार हो? कोई मुझे बताइए भाइयों, आज जब ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है, विश्व व्यापार किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विश्व व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पोर्ट सेक्टर, बंदर बनाना, नए बंदर बनाना। मुझे बताइए भाई, पिछले 15-20 साल में कर्नाटक जिसके पास समुद्री तट है, एक भी पोर्ट नया बना है क्या? जरा बोलो तो, बना है क्या? शहजादे जी जरा बताओ तो सही, आपके मैप में क्या समुद्र किनारा है क्या कर्नाटक का? क्या आपके मैप में कर्नाटक के समुद्र तट पर कोई नए बंदर बनाने की योजना है क्या? भाइयों बहनों, इन्हें समझ ही नहीं है कि कर्नाटक जैसा राज्य जो राष्ट्र की समृद्धि में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं आपने सोची तक नहीं है। शहजादे जी, मैं नहीं जानता हूं मेरे सवालों के जवाब पूछने के लिए आप कहां जाओगे। पूछने जाते हैं ना, मोदी जी ने ये पूछा, मैं क्या जवाब दूं?
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने स्वर्णिम चतुष्क की रचना की। इस बात को हमें मानना होगा। इतिहास में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश में रोड नेटवर्क खड़ा करने में शेरशाह सूरी का लोहा मानते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड की कल्पना की थी और बनाया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने स्वर्णिम चतुष्क का सपना देख करके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अद्भुत काम पेश किया था। लेकिन आपने आकर के उस काम को रोक दिया। क्या आपके दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मैप है क्या कि कहां रोकू, कहां तोड़ू, कहां अटकू? क्या यही काम है क्या? आप जवाब दीजिए देश को। अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट की है। भारत सरकार की एफिडेविट है, मैडम सोनिया जी की सरकार की एफिडेविट है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अटल जी की सरकार के समय जितने रास्ते बने, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जितने रास्ते बने थे, उसमें आधे रास्ते अकेले अटल जी के कालखंड में बने थे, और बाद में यूपी आने के बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया। भाइयों बहनों, शहजादे जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मैप की बात करते हो। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज जीवन में बिजली महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्या बिजली के बिना जीवन चल सकता है? जितनी जरूरत पानी की है, जितनी जरूरत हवा की है, आज उतनी ही जरूरत बिजली की हो गई है कि नहीं हो गई है? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको मिलती है? जरा बोलो तो। नहीं मिलती ना? भाइयों बहनों, गुजरात में गांव में भी 24 घंटे बिजली मिलती है। और जब मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे राज्य में 24 घंटे बिजली है, तो लोग मुझे पूछते हैं कि महीने में कितने दिन? मैं उनको समझाता हूं भाई 365 दिन। तो उनको आश्चर्य होता है। वो मुझे पूछते, सच बताते हो? ऐसा होता है? भाइयों बहनों, अगर इरादा नेक हो, जनता के दुखों की, पीड़ा की संवेदना हो, तो समस्या के समाधान निकल आते हैं। जिनके दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप पड़ा है, मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, क्या उनको ये पता है कि देश के हर कोने में बिजली की मांग है? किसान बिजली के लिए तरस रहा है। स्कूल के अंदर बच्चों को कंप्यूटर चलाना है, बिजली नहीं है। गांव में लोगों ने मोबाइल फोन खरीदा है, लेकिन चार्जिंग कराने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। क्या लोगों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देश का बहुत एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ देश के 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने ताले लगे हुए हैं। ऐसा कोई देश सोचा है आपने? क्या आपके घर में अन्न हो और आप भूखे भी हो? ऐसा कभी होता है क्या? ये देश ऐसा है, इन्होंने ऐसा बनाया है कि जिस देश के पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने तैयार पड़े हैं, कुछ चालू थे उसको बंद करना पड़ा है।
वहां रोज नौकरी करने वालों को मुफ्त में तनख्वाह देनी पड़ रही है, कुछ लोगों को नौकरी से छुट्टी दे दी गई है, और दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा है। शाहजादे जी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में नया हो या ना हो, क्या ये 20,000 मेगावाट बिजली के कारखानों को आपने ताले लगाए हैं, उसको खोलने की कोई योजना है क्या? जब ताला पूरे का पूरा नहीं खुलता है ना, तब तक उसका ताला खुलने वाला नहीं है। और कारण क्या है? कारण यही है कि कोयला नहीं है, कोयले की खदान नहीं है क्या? हिंदुस्तान के पास अनेक वर्षों तक चले इतना कोयले का भंडार है, लेकिन कोयले की खदान पे ताला लगा है। क्यों ताला लगा है? क्योंकि कोयले की फाइल चोरी हो गई है। फाइल क्यों चोरी हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है। बताओ कोयला कौन चोरी कर गया? आप सोचिए भाइयों, क्या ऐसी देश की सरकार हो सकती है जहां कोयले के भंडार हो, कोयले के खदान में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने पड़े हो, और देश अंधेरे में डूबा हुआ हो? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार भाइयों? जरा पूरी ताकत से बताओ, कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? ये अंधेरा कौन लाया? ये कारखाने किसने बंद किए? ये कोयले की चोरी किसने की? क्या ऐसे लोगों को रहने देंगे? क्या ऐसे लोगों को रहने देंगे? ऐसे लोगों को टिकने देंगे? क्या इतना बड़ा देश ऐसे लोगों को दे देंगे? दिल में आग लगी हुई है भाइयों, पीड़ा होती है। ये हमारे देश को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सोचो तो दोस्तों, मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, आपके दादा दादी पिता माता ने जैसी जिंदगी गुजारी, मेरे नौजवान मित्र बताइए, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आप मुश्किलों में जीना चाहते हो? आप मजबूरी में जीना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसा ही दे करके जाना चाहते हो? आपके भविष्य का यही काम करना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो ये बर्बादी लाने वालों को सजा करने का वक्त आया है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज आपके पास आया हूं। देश को तबाह कर दिया और कोई दायित्व तो नहीं। हैरानी तो ये बात की है भैया, आप मुझे बताइए, हमारा किसान जगत का तात अन्न क्यों पैदा करता है? क्या खुद का पेट भरने के लिए पैदा करता है? मुझे बताइए भैया, क्या वो मेहनत खुद का पेट भरने के लिए करता है? किसान के मन में एक इच्छा रहती है कि जो अन्न पैदा करता है, जो गरीब के पेट में जाए, उसके आशीर्वाद मिले, खुद का तो पेट भरे लेकिन दुनिया का भी पेट भरे। इसलिए किसान अपना पसीना बहाता है, रात रात मेहनत करता है, लेकिन जब वो अन्न सड़ जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चूहे खाते हो, बारिश में भीगता हो, सड़ता रहता हो, वो किसान को पीड़ा होगी कि नहीं होगी भाई? उस किसान को पीड़ा होगी कि नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको, ये आए दिन गरीब 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 की बातें करते हैं ना। आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी कुछ होते हैं ना, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं एग्जाम देने जाते हैं,
एग्जाम देने जाते हैं ना तो किसी ईश्वर का नाम का स्मरण करते रहते हैं ताकि परीक्षा में कोई गलती, ऐसा करते हैं ना, यहां भी बहुत लोगों ने जिन्होंने किया होगा, तो कहने की जरूरत नहीं लेकिन सच्चाई होगी है, भगवान का नाम लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी जब चुनाव की एग्जाम आती है ना तो शुरू कर देती है, गरीब 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 बचाओ बचाओ, एग्जाम है, कुछ मदद कर दो, कुछ भी करो, आ जाओ। ये कांग्रेस का खेल रहता है भाइयों। ये गरीबों की बात करने का इनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो अनाज सड़ रहा है वो गरीबों को बांट दो, गरीबों के पेट में जाएगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी मानी नहीं और अनाज को और सड़ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी गरीबों को बांटा नहीं और बाद में 80-90 पैसे की कीमत से ये सड़ा हुआ अनाज शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया। भाइयों डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो। मेरे किसान ने पसीना बहाया था किसी गरीब का पेट भरने के लिए, लेकिन आपने जेब भरने के लिए शराब बनाने वालों को दे दिया। भाइयों बहनों, इसलिए मन में गुस्सा आता है। देश ऐसा हो भाइयों बहनों बदला जा सकता है और बदलने के लिए हमने बेड़ा उठाया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। वादे बहुत हो चुके भाइयों, देश वादों से तंग आ चुका है। देश को इरादा चाहिए और मैं वादे नहीं इरादा लेकर के आया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप ना क्यों कहोगे मुझे बताओ, आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं, ना कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कानूनी व्यवस्था करेंगे, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट लगाएंगे, दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ेगी तो संधि करेंगे, लेकिन काला धन भारत में वापस आएगा और ये पैसे गरीबों के काम आएंगे। भाइयों, मैं वादा करता हूं पैसे गरीबों के काम आएंगे। इतना ही नहीं, जो सैलरी क्लास है, जो ईमानदारी से टैक्स भरता है,
क्योंकि सैलरी क्लास में बेचारा जाएगा कहां? ठीक है, इसका तो इनकम टैक्स कटता ही करता है। जिसने ईमानदारी से टैक्स भरा है, ऐसे सैलरी क्लास वालों को ये जो काला धन में वापस लाऊंगा ना, कुछ परसेंटेज उनको पुरस्कार के रूप में मैं वापस दे दूंगा। हमारे सोच है कि जो ईमानदार है उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, जो बेईमान है उनको सजा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, आमतौर पर चुनाव होते हैं तो जो सत्ता दल होता है उसको हटाने के लिए सारे दल इकट्ठे आते हैं, सभी विरोधी शक्तियां इकट्ठे आती है, कुछ भी करो इनको हटाओ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें एक विपक्ष के व्यक्ति को, एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली आ न जाए इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। कुछ भी करो, मोदी को रोको, मोदी नहीं आना चाहिए। ये मोदी को रोकना क्यों चाहते हैं भाइयों? क्यों तूफान खड़ा किया इतना? कुछ भी करो मोदी को रोको, कुछ भी करो मोदी को रोको, कुछ भी करो मोदी को रोको। ये इसलिए डर रहे हैं, ये इसलिए थर थर कांप रहे हैं कि उन्हें मालूम है 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी। इसीलिए गोलबंद हुए हैं। भाइयों बहनों, जब से मुझे गुजरात का काम मिला था तो मैं दिन रात सोचता था इस समस्या का हल क्या निकालूं, समस्या का हल क्या निकालूं। जब मुझे पूरा देश का दायित्व देने का मेरी पार्टी ने निर्णय किया तो तब से मेरा दिमाग लगा रहता है कि मैं समस्याओं का हल कैसे खोजूं। बेरोजगारी का हल क्या हो, महंगाई का हल क्या हो, भ्रष्टाचार का हल क्या हो, नौजवान को रोजगार मिले इसके लिए क्या हो, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले इसके लिए क्या हो। दिन रात भाइयों बहनों, दिन रात मैं समस्या का हल खोजता हूं और ये लोग मोदी का हल खोज रहे हैं। मोदी का हल खोज रहे हैं। मोदी का हल क्या? भाइयों बहनों, मैं कहता हूं महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं बेरोजगारी रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। वो कहता हूं किसानों की आत्महत्या रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, उनका एक ही एजेंडा है, मोदी रोको। मेरा एक ही एजेंडा है, देश को आगे बढ़ाओ। निर्णय आपको करना है मेरे भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी पूरे कर्नाटक के लोगों को आज बेलगांव की धरती से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाए, भारत का भाग्य बदलने वाली सरकार बनाए। बहुत साल गवा दिए भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, शासक बहुत चुने, एक बार सेवक को चुन करके देख लो। आपने 60 साल चुना है, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो। उनको 60 साल दिए, मैं सिर्फ 60 महीने मांगने आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं 60 साल के अंदर आपकी तकदीर और देश की तस्वीर बदल दूंगा दोस्तों।
उज्जवल भविष्य के लिए गरीब से गरीब की चिंता करने के लिए, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, शिक्षा नसीब हुई हो ना हो, गरीबी में पला बड़ा हो, उन सबके जीवन में एक बदलाव आए, देश नई ऊंचाइयों को पार करे, इस सपने को लेकर के मैं आपके पास आया। भाइयों बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। देश की भलाई के लिए देश को मजबूत सरकार चाहिए। और मैं इरादा बताता हूं, और पत्रकार मित्र भी मेरा हिसाब लिख लें, जरूरत पड़े तो मेरे से हिसाब मांगना। मैं वो दिमाग में मैप वाला इंसान नहीं हूं। मैं आपको मेरा इरादा बताता हूं, आप मुझे दायित्व देंगे, मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। जनता की भलाई के लिए सोचूंगा, काम करूंगा। बद इरादे से कोई निर्णय नहीं करूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, एक सेवक के नाते आया हूं, और सेवक के नाते जीना चाहता हूं। सेवक के नाते आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मेरे बेलगांव के भाइयों बहनों, आप कर्नाटक से सारे के सारे कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। हम आपको एक मजबूत सरकार देंगे, हम एक आपको मजबूत सरकार देंगे। हम प्रगति की नई ऊंचाई पर देश को ले जाएंगे। आपने इतना प्यार दिया, इतना समय देख रहा हूं, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। मैं आपका प्यार कभी भूलूंगा नहीं। मेरे बेलगांव के भाइयों बहनों, मैं इस प्यार को ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का इस कार्यक्रम को शानदार ढंग से सभी जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हुए, खास करके महिलाओं को भी धन्यवाद, पत्रकार मित्रों को और उपस्थित सभी महानुभावों को। मैं इसी के साथ ऐलान करता हूं, इस कार्यक्रम का समारोह यही हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।